Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Since yesterday, when result of IBPS clerk came, a sort of anxiety is there in the mind of candidates. How many vacancies are there in IBPS clerk? 10. If we go through the revised notification, already 2,549 vacancies were there, including Canara Bank. Thereafter, 3,100 vacancies were added by Punjab National Bank, and that's why you might be observing that the West Bengal, Assam and Maharashtra, the cutoffs may be low. Many people have got cleared even after doing lesser attempts due to United Bank of India merger with PNB. Out of 3,100 vacancies, most vacancies may be from these three states. So this works out to be 5,649. Around 500 clerks from Bank of Baroda are getting promoted to scale 1, and they will requisite at least 800 to 900 clerks from this process. And if we add 900 in this, the figure comes to 6,549. Then Indian Bank is also likely to add and requisite the number of clerks. So my hunch is the vacancies may ultimately cross 7,200 figure by the time result comes. And around 70,000 plus candidates might have been shortlisted for main examination. So now this is a time when you should give your 100% and try to come 1 out of 10. The people, those are talking of less vacancies, I think they are not aware about the factual position about the vacancies. Yes, these vacancies are very, very low as compared to last year when 19,000 people got the selection, declared vacancies for 12,000, then there was addition of vacancies and ultimately 19,000 people got selected. Since last year, more than 1,20,000 people were called for main examination. And this time the number is around 70,000. And that's why there is a spike in cutoff in most states. And this trend will continue. Even current year also, the vacancies may fall from this level. So we have to prepare very, very thick and thin. God has given you an opportunity. Try to convert this opportunity into your job. And for that, I have already suggested 3 good things for you. One is good quality mock test. If you have not subscribed to this mock test till now, take annual plan. It is going to help you. Even if you are already having some mock test, take this mock test suggested by me. Some of you sometimes ask, sir, why we should take this mock test? This is your choice. I am showing you a right path. If you want to travel, it is your choice. If you don't want to travel, it is your choice. I am only advising you. Then is the current affairs. For current affairs, I have given you a good source. Take 2020 plan, 2021 plan, use coupon code AA03 and get 10% discount. So then watch banking, financial, economic awareness videos. The playlist link is available on the home page of this channel. Visit the home page, watch these videos. Some people are worried, sir, how to improve English, how to improve quant, how to improve reasoning. Playlists for these subjects are also available in the playlist at home page. So search the respective playlist, watch the videos, work according to that. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब काफ़ी लोगों के मन में चिंता जब से रिजल्ट आया, सर वैकेंसीज कितनी है. अब मैं आपको इसमें आंकड़ा देता हूं कि जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें टोटल बन रहा था 2,549. 3,100 वैकेंसीज ऐड हुई हैं पीएनबी की. ये मिला के हो गई 5,649. इसके बाद 500 क्लर्क बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर के लिए प्रमोशन हो रही है और उम्मीद है 800 से 900 वैकेंसीज बैंक ऑफ बड़ौदा लास्ट मिनट पे ऐड करेगी. इसी तरह इंडियन बैंक भी कुछ वैकेंसीज ऐड करेगा और अल्टीमेटली ये आंकड़ा
7,200 को क्रॉस करेगा या 7,000 से ऊपर रहेगा। लगभग 70-72 हज़ार लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं जो मेन एग्जामिनेशन में बैठेंगे, ऐसा अंदाजा है। लास्ट ईयर आप देखें तो 12,000 वैकेंसीज थी, 1,20,000 से अधिक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो जब 1,20,000 के मुकाबले 70,000 का आंकड़ा रह जाएगा और कैंडिडेट बढ़ चुके हैं तो नेचुरली कट ऑफ बढ़ जाएगा। पर आप देखेंगे कि जो वेस्ट बंगाल है, असम है, महाराष्ट्र है, वहां पे कट ऑफ कम होगा इस बार, क्योंकि जिन्होंने कम भी अटेम्प्ट किए हैं वो भी इसमें पार कर गए हैं। उसका रीजन क्या है? जो पीएनबी की वैकेंसीज हैं वो प्रीडोमिनेंटली असम, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में बढ़ी है, क्योंकि यूनाइटेड बैंक पीएनबी में मर्ज होने से जो उनकी ब्रांचेस में शॉर्टेज था स्टाफ का, वो इस प्रोसेस के अंदर फिल होगा। तो इसलिए उन स्टेट्स को इसमें एडवांटेज हो गया। जिन स्टेट्स के बैंक्स ने वैकेंसी अभी तक नहीं दी है, वहां के स्टेट से कम लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं प्री में खासकर, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपने इसको स्लिप नहीं होने देना है अपने हाथ से। मगर फिर भी आपका कंपटीशन 1 आउट ऑफ 10 या 1 आउट ऑफ 9 या 1 आउट ऑफ 8 ही है। ये मत सोचिए कि वैकेंसीज मतलब कम लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं और वैकेंसीज ज़्यादा, ऐसा नहीं है। 10 गुना ही शॉर्टलिस्ट हुए हैं और IBPS जो एंटिसिपेटेड वैकेंसीज है उसको भी अकाउंट फॉर करके ही रिजल्ट निकालती है। तो आपने ये मान के चलना है मेरा कंपटीशन 1 आउट ऑफ 10 है। 3 बेहतरीन चीज़ें मैंने आपको सजेस्ट की हैं। अच्छा मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिए, आज एनुअल प्लान ले ले, आपको जरूर फायदा होगा। कुछ लोग पूछते हैं सर क्यों लूं? ये तो आपकी मर्जी है, मत लीजिए। मैं तो आपको एक सही राह दिखा रहा हूं। आप मानेंगे आपका फायदा होगा, नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कह दिया आपने कहना मान ही लेना है। ये तो आपकी मर्जी है ना, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपने कहना मानना है नहीं मानना है, ये तो आपकी मर्जी है। इसमें वो कोई बात नहीं है। मगर जो मेरी राय है वो मैं आपके समक्ष जरूर रखूंगा। इसी तरह करंट अफेयर है, उसमें मैंने आपको एक अच्छा सोर्स बताया है। उसका 2020 और 2021 प्लान ले लीजिए, कूपन कोड AA03 यूज कर लीजिए और वहां से करंट अफेयर पढ़िए। जितनी एग्जॉस्टिव आप स्टडी करेंगे उतना आप आगे निकलेंगे। इसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस ये करना जरूरी है। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक होम पेज पे है चैनल के, वहां से देख लीजिए। कुछ लोग पूछते हैं सर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, क्वांट कैसे इंप्रूव करें, रीजनिंग कैसे इंप्रूव करें। इन सब की भी प्लेलिस्ट होम पेज पे उपलब्ध है। होम पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, वहां से लिंक क्लिक करिए, उन वीडियोस को देखिए और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए। ये गोल्डन चांस है। देखो आने वाले टाइम में वैकेंसीज का जो स्तर है वो गिरता ही जाएगा, ये आप मान के चलिए। अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई इस साल कम आई अगले साल बढ़ जाएंगी, मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा। जो ट्रेंड है, मैंने पहले ही 1 साल पहले ही वीडियो डाल दी थी कि हर साल वैकेंसी गिरती रहेंगी 2022 तक, और 23 के बाद अगले 6 साल तक 2029 तक बहुत नेग्लिजिबल वैकेंसीज रह जाएंगी बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि रिटायरमेंट ही नहीं है। और अब तो ये नया प्रॉब्लम आ गई प्राइवेटाइजेशन वाली, उससे कितने बैंक बचेंगे पब्लिक सेक्टर में, ये भी एक देखने वाला विषय। गॉड ब्लेस यू ऑल।